روزے کو توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں، یہ جاننا بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم بنیادی طور پر بات کو سامنے رکھیں تو 5 ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں، 5 ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دینے والی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کاموں کا ارتکاب کر لیتا ہے یا نہیں کر لیتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے جماع، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ روزے کی حالت میں جماع کرنا، ملاقات کرنا، اسی کے تحت استمنا بھی آ جائے گا کہ خود سے منی کا اخراج کرنا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کھانا اور پینا، چاہے وہ منہ کے ذریعے سے ہو یا کوئی بھی غذا ناک کے ذریعے سے اگر چلی جا رہی ہے تب بھی یہ کھانے پینے کے اندر شمار ہوگا۔ اور اسی کے تحت وہ چیزیں بھی اس کے بعد کا جو روزے توڑنے والی چیز ہے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو کھانے اور پینے کے مقام میں ہیں، یعنی وہ کھانے پینے والی چیزیں تو نہیں ہیں لیکن اگر کوئی آدمی وہ کام کر لے، ان چیزوں کو لے تو گویا کہ وہ کھانے اور پینے کے اندر اس کا شمار ہو جانے والا ہے۔ اسی طرح عمدن قے کرنا یہ بھی روزے کو توڑنے والی چیز ہے۔ اور 5ویں چیز ہے جو عورتوں کے لیے خاص ہے، حیض اور نفاس کا آ جانا۔ اگر یہ 5 چیزیں کسی کے اندر پائی جا رہی ہیں تو یقیناً اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تھوڑی سی تفصیل میں اس کے اندر بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو روزہ توڑنے والی چیز ہے اور جس پر شریعت نے کفارہ بھی رکھا ہے وہ ہے نہار رمضان میں روزے کی حالت میں جماع کرنا، میاں بیوی کا ملاقات کرنا۔ یہ بہت ہی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اس کا اوپر جو اللہ رب العالمین نے کفارہ رکھا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ سخت کفارہ رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اس طرح کا کام کر لیتا ہے تو پھر اسے یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، ایک شخص آیا اور یہ کہنے لگا کہ ہلکتو، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آخر کیا معاملہ ہے، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تم ہلاک ہو گئے؟ اس آدمی نے کہا کہ وقعت اہلی فی نہار رمضان، میں روزے کی حالت میں روزہ رہتے ہوئے اپنے بیوی سے میں نے ملاقات کر لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ وہ صحابی ایک سے زائد مرتبہ پوچھے تو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو پہلے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا اس آدمی پر واجب آئے گی اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے جس کے عوض میں انہیں کفارہ بھی دینا ہوگا۔ کفارے کی جو ترتیب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی ہے کہ سب سے پہلے تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، ترتیب ہے، ضروری ہے کہ پہلے یہ کام کریں، اگر یہ نہیں کر سکتے تبھی دوسرا آپشن دیا گیا ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ لگاتار 60 دن کے روزے رکھنے ہیں، لگاتار 60 ڈیز کا روزہ رکھنا ہے، 60 ڈیز جو ہے فاسٹ کرنا ہے، اور یہ لگاتار ہے۔ ایک دن بھی اگر بیچ میں چھوٹ جائے تو پھر سے گنتی دوبارہ سٹارٹ کرنی ہوگی، شروعات سے پھر سے روزے رکھنے ہوں گے۔ اور تیسرا جو اس کے بعد کا جو آپشن دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ صحابی رسول جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تھے تو پہلی بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ تمہیں چاہیے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی ہوں، میں کسی غلام کو آزاد نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر تم 60 دن کے لگاتار روزے رکھ لو۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان آدمی ہوں، ایک ہی 30 دنوں کے معاملے کے اندر ہی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، 60 دن کے روزے میں کیسے رکھ پاؤں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے تیسرا آپشن یہ ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ جب اس آدمی نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے کہ کون سا کفارہ ادا کر سکتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی نہیں کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھلانے کی دور کی بات ہے، میں خود مسکین ہوں، میں ہی غریب ہوں، مدینے کی ان 2 وادیوں کے درمیان میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ٹوکری لائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ یہ کھجور کی ٹوکری لے جاؤ اور اس کھجوروں کو تم صدقہ دے دو، خیرات کر دو۔ ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے بھی زیادہ غریب کوئی آدمی ہے؟ میں ہی سب سے زیادہ غریب ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ جاؤ یہ تم خود کھا لو اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے یہ خاص جو باتیں بتلائی ہیں۔ اب ہر آدمی اپنے طریقے پر یا اپنے طور پر یہ جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے کہ وہ کون سا کفارہ ادا کر سکتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کو بالکل بھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو ایسا پہلے تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی سے یہ غلطی ہو جا رہی ہے تب اس کے اوپر یہ کفارہ ہے، اور یہ جو کفارہ لگایا گیا ہے اس کے چند کنڈیشنز ہیں جو انشاءاللہ ہم آخری میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو روزے توڑنے والی چیز ہے وہ ہے روزے کی حالت میں جمع کر لینا، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لینا۔ اسی طرح اسی کے تحت ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی خودی سے منی کو خارج کرتا ہے، جسے استمناء جسے کہا جاتا ہے، جسے مصبیح جسے کہا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں یہ کام بھی کرتا ہے، خود سے اپنی منی کو خارج کرتا ہے، تو علماء نے اسے بھی روزے کے فاسد ہونے کا اس پر بھی حکم لگایا ہے، تو لہٰذا اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اس کے اوپر ایک کفارہ نہیں ہے۔ جو کفارے بتائے گئے ہیں یہ خاص طور سے بیوی کے ساتھ ملاقات کرنے کے تعلق سے ہے۔ البتہ یہ جو استمناء یا جو اپنے خود
खुद से जो है ये जो मनी का इखराज जो कर रहा है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रोज़े की क़ज़ा है, अलबत्ता तौबा करना उस पर लाजिम है, ज़रूरी है, इसलिए कि जानबूझकर रोज़े को इस तरह तोड़ देना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसी तरह अगर कोई आदमी शुरुआत के अंदर ये काम करने लग जाए लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद रुक जाए, इतनी देर के बाद कि उसका मनी जो है खारिज नहीं हुआ है, तो ऐसी सूरत में उलमा ने कहा कि उसका रोज़ा फासिल नहीं होगा, उसका रोज़ा फासिल नहीं होगा। मनी का खुरूज जो है, मनी का बाहर निकलना, ये ही रोज़े को तोड़ने वाला है। इसी तरह दूसरी जो चीज़ है जो रोज़े को तोड़ देती है वो है खाना और पीना। ये बात सबको मालूम है, रोज़े का मकसद ये है कि इंसान को खाने और पीने से एक तो वक्त मुकर्ररा के लिए रोक दिया गया है। अगर कोई आदमी इन औकात के अंदर रोज़े की हालत में खा ले रहा है, पी ले रहा है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। जिन कंडीशन है जिसके अंदर जो है उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, इंशाल्लाह हम एक साथ उसको आखिरी में बयान करेंगे। इसके बाद की जो चीज़ है वो ये है कि बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो खाने पीने के अंदर उनका शुमार नहीं है, लेकिन उसका मकसद ही खाने और पीने का है। यानी जो खाने और पीने से जो इंसान को हासिल होने वाली चीज़ है वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। उलमा ने इसके अंदर खून को चढ़ाने का इसके अंदर जिक्र किया है। एक तो ये है कि आदमी खून चढ़ाए, खून का यानी ब्लड ले, और इसी तरह दूसरी जो बात कही गई है इसके अंदर वो ये कि ऐसे इंजेक्शंस ले जो कि ताकत के लिए बनाए गए हैं, ऐसे इंजेक्शन जो इंसान के अंदर ताकत को बढ़ाते हैं या ताकत पैदा करते हैं, तो लिहाजा ऐसे इंजेक्शन भी खाने और पीने के हुक्म में होंगे। जो आदमी इन चीज़ों को करता है या इस तरह का इंजेक्शन लेता है जो कि ग़िज़ा का सबब बन जाता है, तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता वो इंजेक्शन जो कि ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है और यानी उसको एक मानों में ग़िज़ा नहीं मिल रही है, बस एक इलाज के तौर पर अगर वो ले रहा है, तो उलमा ने इस बात की उसे इजाज़त दी है कि वो ऐसा इंजेक्शन ले सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई वैक्सीन लेना चाह रहा है तो फिर उसे इस बात की जो है इजाज़त दी गई है, इसलिए कि ये खाने पीने के हुक्म में ये चीज़ नहीं आएगी। इसी तरह जो रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ है वो है अमदन क़य करना। अमदन क़य करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़रअहु अल-क़य, वो आदमी जिसे उल्टी आ गई, यानी वो उल्टी करना नहीं चाह रहा था, बगैर किसी सबब से या बगैर उसके किसी इख्तियार से अगर उसे उल्टी आ जाए तो फिर उसे चाहिए कि वो अपने रोज़े को मुकम्मल कर लिए, इसलिए कि उसका रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन मन इस्तक़ा, लेकिन जिसने क़य को जानबूझ कर किया, यानी अपनी उंगलियों को हलक में डाला और जानबूझ के कुछ ऐसा काम किया, अपने पेट को इस तरह दबाया, अपने मैदे को इस तरह दबाया कि जिसकी वजह से क़य हो गई, तो फिर ऐसे आदमी का भी रोज़ा टूट जाएगा, जैसा कि हदीस के अंदर इसके ताल्लुक से बयान आया है। अगर किसी को ऐसे ही क़य आ जाती है बगैर उसके इख्तियार के, तो इस सूरत में बताया गया है कि फिर उसका रोज़ा नहीं टूटता। और उसके बाद की जो चीज़ है वो औरतों के लिए खास है, हैज़ और निफास का आ जाना, जैसा कि हमने इससे पहले के दर्स में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस सामने रखी थी कि जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बतलाई और ये हुक्म दिया कि अगर हैज़ आ जाए, पीरियड शुरू हो जाए, और या फिर जो है निफास का खून आ जाए, किसी की विलादत हो जाए और उसके बाद का जो खून आता है, तो इस सिलसिले में ये शरीयत का हुक्म दिया गया है, तो फिर उस खातून को रोज़े को अपने तोड़ देना चाहिए। ये चीज़ रोज़े को तोड़ देती है। मज़ीद हाज़रीन, ये जो 5 चीज़ें बयान की गई हैं आपके सामने, हैज़ और निफास को छोड़कर इनके लिए 3 कंडीशन उलमा ने बतलाए हैं। मैंने रोज़ा तोड़ने वाली जो चीज़ें हमने आपके सामने बयान की है कि जिमा करना, बीवी से मुलाकात करना, इसी तरह मनी को खुद से खारिज करना, इसी तरह खाना और पीना या फिर ऐसी चीज़ जो खाने और पीने के मकाम में है, और इसी तरह जानबूझकर तय कर लेना। इन चारों चीज़ों के अंदर उलमा ने 3 कंडीशंस लगाए हैं। इसे गौर से सुने, अगर ये 3 कंडीशन पाई जा रही हैं तब उस आदमी का रोज़ा टूट जाएगा, वरना उसका रोज़ा नहीं टूटेगा इन चारों चीज़ों को कर लेने के बावजूद। सबसे पहली चीज़ ये है कि उस आदमी को ये मालूम हो कि ये काम करने से रोज़ा टूट जाता है। मिसाल के तौर पर एक नया मुसलमान है, अभी वो रोज़े रखना शुरू किया है, उसे ये बात मालूम ही नहीं है कि बीवी से मुलाकात कर लेने से रोज़े की हालत में रोज़ा टूट जाता है, तो फिर हम उसे कहेंगे, उसके लिए ये हुक्म होगा कि उसका रोज़ा नहीं टूटा है, इसलिए कि उसे इस बात का इल्म ही नहीं था। तो इसी तरह अगर कोई आदमी ऐसा है जो इन चीज़ों को कर लेता है, उसे मालूम ही नहीं है ये चीज़ें करने से रोज़े टूट जाते हैं, यानी किसी ने जानबूझकर तय कर ली, उसे मालूम ही नहीं था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो रोज़ा टूट जाएगा, तो उलमा ने कहा कि ऐसे आदमी का रोज़ा नहीं टूटता है। यानी उसे आलिम होना इस माने में कि उसे इल्म होना चाहिए कि ये चीज़ें रोज़ा तोड़ने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि वो भूल कर ना करे, बल्कि उसके यानी एक मानों में वो जानता हो, जानने के साथ साथ उसे ये मालूम हो और उसे याद भी हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे रोज़ा टूटने वाला है। वरना तो अगर कोई आदमी भूले से खा पी ले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक ये हुक्म दिया है कि अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में खा पी लेता है तो फिर उसे चाहिए कि वो अपने रोज़े को मुकम्मल करे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे खिलाया है, पिलाया है। रोज़े को ये चीज़ मुतासर नहीं करती है। ये वो आदमी है जो कि भूले से खा पी ले रहा है, लेकिन अगर कोई आदमी जानते बूझते और उसे याद भी है कि वो रोज़े से है, उसके बावजूद अगर वो खा ले रहा है, पी ले रहा है, तब तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। और उसकी तीसरी जो कंडीशन जो उलमा ने बताई है वो ये है कि उसका इस पर इख्तियार हो, इख्तियार होना चाहिए। अगर कोई उसे प्रेशराइज कर रहा है या कोई आदमी उसे ज़बरदस्ती उसे रोज़े यानी रोज़ा उसका तोड़ दे रहा है, उसे कुछ पिलाकर उसे कुछ खिलाकर, तो फिर ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, उसका रोज़ा वैसे ही बाकी रहेगा। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो उन लोगों से तकलीफात को हटा लिया है कि जो मुस्तकरे हैं, यानी जिन्हें लोग जो है ज़बरदस्ती कोई काम करा लें, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटने वाला है। तो मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़े को तोड़ने वाली हैं। 4 चीज़ों के साथ उलमा ने ये 3 कंडीशंस लगाई है कि उसे इल्म हो कि ये चीज़ें रोज़ा तोड़ने वाली हैं। दूसरी बात ये कि उसे याद हो कि वो रोज़ा है, और फिर याद रहने के बावजूद ये इन चारों चीज़ों को कर ले, और साथ ही साथ उसे इख्तियार हो, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया है, किसी ने ज़बरदस्ती उससे ये रोज़ा तोड़ने वाला ये काम उसे नहीं कराया है। अलबत्ता है तो निफास के ताल्लुक से ये कंडीशंस नहीं है, किसी को मालूम हो ना हो तब भी अगर इस तरह की बात हो जाए तो फिर उन खवातीन का रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा हिजामा को भी उलमा ने रोज़े को फासिद करने के अंदर गिना है। बाज़ उलमा ने इसको कहा है कि हिजामा करना, हिजामा यानी कपिंग कराना, ये रोज़े को तोड़ने वाला नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, ये चीज़ें रोज़े को तोड़ देती है। और उलमा का जो इख्तिलाफ है उसका सबब ये है कि ऐसी हदीसें पाई जा रही हैं कि जिनके अंदर दोनों तरीक़े का हुक्म है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में हिजामा करवाया, रोज़े की हालत में कपिंग करवाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर अपने रोज़े को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं तोड़ा, और फिर आप यानी रोज़े को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी रखा। तो उलमा ने कहा ये देख करके हम रोज़े को जो है रोज़े की हालत में ये काम किया जा सकता है। अलबत्ता बाज़ हदीस ऐसी आई है जिसके अंदर ये कहा गया अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों के अंदर ये बात कही गई कि जो पचना लगा रहा है और जो लगा रहा है दोनों का भी रोज़ा टूट जाएगा। जो कपिंग कर रहा है और जो करवा रहा है दोनों का भी रोज़ा टूट जाएगा। इस ताल्लुक से भी हदीसें आई हैं, और बात ऐसी भी हदीसें हैं, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये जो बात थी कि रोज़ा टूट जाएगा वो कमज़ोरी के सबब थी। अलबत्ता बहुत सारा इख्तिलाफ इस सिलसिले में पाया जाता है। बेहतर ये है इख्तिलाफ से अगर हम निकलना चाहें तो बेहतर ये है कि रोज़े की हालत में हम जो है हिजामा ना कराएं, कपिंग ना कराएं। अलबत्ता हम रात के मौके पर जब हम रोज़ा मुकम्मल कर लें तो उसके बाद हम जो है कपिंग करा सकते हैं, हिजामा जो है पशना लगा सकते हैं। इसी के अंदर उलमा ने ये बात कही है कि खून देना तबर्रुअ के तौर पर किसी को जो है खून देना, ये भी रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ है। एक बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि टेस्ट के लिए खून लिया जाता है, वो तो बिल्कुल बहुत ही थोड़ा होता है, तो ऐसी हालत में रोज़ा जो है नहीं टूटता। अलबत्ता खून अगर बहुत ज़्यादा दे दिया जा रहा है तो उसका हुक्म भी जो है पशना लगाने के अंदर आएगा। लिहाजा ऐसे आदमी का भी रोज़ा टूट जाएगा जो बहुत ज़्यादा खून जो है दे रहा है, बाकायदा तौर पर खून का अतिया दे रहा है, टेस्टिंग के तौर पर अगर जो खून दे रहे हैं तो ऐसे लोगों का जो है रोज़ा नहीं टूटता। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, रोज़े के अंदर जो चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है उसके अंदर ज़्यादा पानी नाक में चढ़ाना है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बालिग़ फ़िल इस्तिंशाक़ि इल्ला अन तकूना साइमा, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने नाक में जब पानी चढ़ाओ तो बिल्कुल मुबालगे से काम लो, नाक में पानी थोड़ा ज़्यादा चढ़ाओ, इस माने में कि जब हम नाक में पानी चढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल सांस के साथ जो है हम चढ़ाएं तो आके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है सफाई हो जाए। अलबत्ता रोज़े की हालत में इससे मना किया गया है, रोज़े की हालत में इससे मना किया गया है कि बहुत ज़्यादा जो है नाक में पानी चढ़ा रहे हैं और साथ में जो है सांस अंदर खींच रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हलक के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से हलक तक जो है पानी चला जाए। अगर ऐसा हो रहा है तब तो उसका रोज़ा जो है टूट जाएगा। इसी तरह गरगरा करना है, पानी का गरगरा करना, इससे भी जो है बचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हलक में जो है पानी चला जाए। इसी तरह बाज़ ऐसे खतरात हैं जो इंसान लेता है, अगर कान में कोई खतरात डाल रहे हैं या फिर आँख में कुछ खतरात डाल रहे हैं तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता नाक में जो खतरात डाले जा रहे हैं तो उलमा ने कहा कि ये चीज़ जो है नाक के ज़रिए से पेट तक, हलक तक पहुँचने वाली है, तो नाक के जो खतरात हैं, नाक में डालने वाले जो खतरात हैं, उनसे एक रोज़ेदार को परहेज़ करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बाज़ अहम मसाइल मैंने आपके सामने रखे हैं। अलबत्ता बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो किसी को पेच आ सकते हैं, उनके ताल्लुक से उलमा की तरफ रुजू किया जा सकता है।